यहाँ चाहिए एक बेर पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के सरकार बना देना। एकदम लौह पुरुष जिस व्यक्ति ने कह दिया कि मैं अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने संप्रदाय के लिए टोपी नहीं पहनूंगा, उससे ज्यादा बड़ा लौह पुरुष कौन हो सकता है? लोगों ने यहाँ पर राम जी के नाम पर उन्होंने जो है सरकार बनाई, सब कुछ है, लेकिन आज तक अयोध्या में वो पर्यटन नगरी का दर्जा नहीं दिला सके। In 1990, there was a Rath Yatra that started from Somnath, Gujarat to right here, Ayodhya in Uttar Pradesh. That event would forever change the landscape of Indian politics. As the Rath made its way through central India, Hindutva supporters thronged its path. They beat thalis, they rang temple bells, some snared the dust from the tracks of that particular Rath. Standing at the helm, leading that movement of Ayodhya movement was Lal Krishna Advani. But there were many who were holding him up, the back-end team. And one of those key organizers was Narendra Modi. That was 24 years ago. Today, the same man is the prime ministerial face of the same party that reaped political dividends in 1990. He looked at his guru, L.K. Advani, followed in his footsteps, trying to acquire the Lauh Purush image, the face of Hindutva, that what was L.K. Advani. Today, as he's expanding that same political image, he's trying to appropriate, at least at the face of it, the image of another BJP stalwart, Atal Bihari Vajpayee, Vikas Purush. So, is he a Vikas Purush or is he a Lauh Purush? Or has he successfully been able to be both? So which of the two is he, or has he successfully mastered the art of both? And what does this sleepy town of Ayodhya think? The small city of Ayodhya is a city of over 7,000 temples. Every road, every lane, every corner leads you to the steps of a Hindu temple, like right here at this particular corner. But for years now, the name Ayodhya is synonymous with only one name, and that is the Ram Mandir. We go now to meet the priest of the Ram Mandir. देखिए, बीजेपी को अयोध्या के माध्यम से सत्ता मिली, सब लोग जानते हैं, और सत्ता मिलने के बाद उसको अयोध्या का एक प्रकार से उस पार्टी में कर्ज हुआ, लेकिन उसके बदले में अयोध्या के लिए उसने कुछ नहीं किया, चाहे वो राम मंदिर से संबंधित हो या अयोध्या का विकास हो, इससे उन्होंने कुछ नहीं किया जो सामने है। Like we said, there are over 7,000 temples in Ayodhya, most of them wilting in the shadows of the Ram Mandir. One of them is Mani Parbat temple right here, dilapidated, crumbling masonry falling to seed, and this temple is over 1,000 years old. ऐसा है, ये जगह प्राचीन है। आपको दुख नहीं होता है कि सारा जो पैसा वैसा आता है वो राम मंदिर पे जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं आता है? ऐसा है, हमें दुख तो है, हम कर कैसे का पाएंगे, इसलिए कि हम जो है चाहते हैं सब कुछ, लेकिन हमारा बस नहीं चल पाता है। इतना दिन हो गया, लेकिन फिर भी हम अपना कोशिश बहुत के लखनऊ तक दौड़े, लेकिन पूरा तक तो सुन नहीं रहा है। न यहाँ के अधिकारी जब सावन मेला में आएंगे 2 दिन 4 दिन इधर उधर करके बाद चुप मार के चला जाते हैं, फिर कोई कुछ कहता है न करता है। आपको लगता है नरेंद्र मोदी कुछ कर पाएगा? हाँ, कर पाएंगे, इसलिए कि जिसके दिल में हिंदुत्व है वो करेगा, जिसके हृदय में हिंदू होकर के हिंदुत्व नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के प्रतीक हैं? हाँ, प्रतीक तो ही है, तो माना जाए हम सब जो है हिंदू हैं तो हिंदू हैं, भक्त हैं तो भक्त को पहचान नहीं लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी के जो 2002 के बारे में बोला जाता है, वो चीज जो है उन्होंने जितना जो भी किए अपना ढंग से अच्छा किए, वही चीज उनको करने से आज सबको कान में ये है और आंख पर चढ़ी है कि ना ये काम करेंगे, क्योंकि जो पहले जो कार्य किए रहता है इसी से सबको आसार बना है।
The face of Hindutva was a carefully cultivated image, as is now the face of development. But the man behind both these faces, Narendra Modi, what does the citizen of Ayodhya think about him? मेन उनका विकास का मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी का। अयोध्या वास्तव में अभी जिस विकास के मुकाम पर होना चाहिए अभी उसमें पीछे है। हम उनको दोनों मानते हैं, लोह पुरुष भी है, विकास पुरुष भी है। विकास पुरुष इस माने में है कि जिस तरह उन्होंने गुजरात में विकास किया उसको देखते हुए यह माना जाता है कि वो विकास पुरुष भी है। लोह पुरुष इस तरह है कि वो अपने बातों पे बिल्कुल अटल रहते हैं और काम करते हैं, यही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अभी तक तो उन्होंने अयोध्या के लिए कुछ किया नहीं, तो क्यों लगता है? अभी तक क्या करते हो अयोध्या के लिए? अभी तो एक छोटे से राज्य में सिमट कर रह गए, अब उन्होंने पूरे देश की बीड़ा उठाई है, तो पूरे देश के लिए वो करेंगे। अयोध्या, अब चूंकि अयोध्या तो गढ़ है ही है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक सांसदी यहाँ से भाजपा का नहीं हो सका है और हमको लग रहा है कि आज तक नहीं हो पाएगा। जो गोधरा में कार सेवक मारे गए थे जाकर के, उनका कर्ज है उनके ऊपर। उस कर्ज को उतारने के लिए अयोध्या में डेवलपमेंट, राम मंदिर, इन सभी मुद्दों को, धारा 370, इन सभी चीजों के ऊपर वो कार्य करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। अयोध्या ही नहीं पूरे देश के विकास का विश्वास रखते हैं। The job of a teacher is to impart knowledge and then leave it up to the disciple to make up their own mind. We are in one such college right here, ML Inter College in Faizabad, and we're going to talk to some teachers here who are imparting knowledge to many first-time voters of this country. क्या लगता है आपको कि जैसे अगर आपसे कोई बच्चा आपकी क्लास में पूछता है आपसे कि नरेंद्र मोदी कम्युनल फोर्स है, नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का फेस है, नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट के उस पर है, तो आप क्या बताते हैं उस बच्चे को? बस इतना कहते हैं कि ये दूसरों के द्वारा लगाया गया आरोप है। आज तक जब कोई चीज सिद्ध नहीं हो पाई तो बार बार रिपीट करने से, बार बार कहने से कोई ये तो आप मोदी का पक्ष ले रहे हैं। पक्ष लेने वाली बात नहीं, कैसे आप सिद्ध करेंगे? आखिर कोई तर्क रखेंगे, कोई विकल्प करेंगे, कोई बात ऐसी रखेंगे जिससे ये सिद्ध हो जाए। जब आप सिद्ध नहीं कर पाए तो इस बात को बार बार रिपीट कर देने से कोई आदमी ऐसा हो जाएगा? क्रिमिनल और गैर क्रिमिनल का क्या मतलब है? सड़कें बन रही हैं, जो वहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, उससे क्या केवल एक ही वर्ग समुदाय के लोगों का भला हो रहा है? अगर कोई राष्ट्र के बारे में बात, कोई राष्ट्रीय सोच रखता है, कोई देशभक्ति की बात करता है, तो आपको लगता नहीं है कि टीचर होते हुए आपको ऐसा कक्षा में ये बात बच्चों से नहीं की जानी चाहिए? वहाँ सब तरह के सभी परिवारों से बच्चे, सभी विचारों के बच्चे, कक्षा में हम ये बात नहीं कर सकते। और रही शिक्षकों की बात, तो गुजरात में देख लीजिए, वहाँ शिक्षक संविदा पे हो गया, कर्मचारी ठेकेदारी पे हो गया। जिस दिन मोदी की सरकार बन जाएगी, कर्मचारी और शिक्षक को रोना पड़ेगा। किसी शासक की, चाहे इतिहास उठा के देखें, उसके शासनकाल में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके लिए जिम्मेदार शासक होता है। हम सीधे तौर पर अगर नरेंद्र मोदी को नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अपने विवेक का प्रयोग करें, जो देश का बढ़िया विकास कर सके, बढ़िया प्रशासन दे सके, उसी को बच्चे चुनेंगे। जो है, अगर वो आपसे पूछें कि नरेंद्र मोदी कम्युनल है, तो हम तो कहेंगे नरेंद्र मोदी ठीक है, जो है लाइए, देश को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। अगर वो पूछे राहुल गांधी कैसे हैं, तो राहुल गांधी भी ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि गुजरात में इतना विकास किया है, वहाँ देखा जा सकता है विकास क्या है हकीकत में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, तो मैं उसका बैकग्राउंड जानूंगा कि क्या उसका बैकग्राउंड था। उसको मैं, सब लोग जानते हैं कि कैसे मोदी होते हैं, सब लोग जानते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री थे। आज कोई केरला के मुख्यमंत्री पूछे, कोई बच्चा बता पाएगा? उसका क्या कारण है? तो हम ये सलाह देंगे, बच्चा तुम देखो सेकुलर कौन है, उसको बताया जाएगा, उसको बताया जाए, उसकी व्यवस्था की जाएगी। It's interesting what's playing out, the politics in this particular college. Most of these teachers are the ones who are teaching first-time voters of this country, and as you can see, the atmosphere as polarized as it is in the rest of the country. The city, steeped in tradition, is struggling to keep up with the identity, the name, the image it's been given over the years. Awash in saffron, sometimes which borders on gimmickry, Ayodhya's administrative fabric is disintegrating. Ironically, the city which has come to be the face of Hindutva has seen zero development. मंदिर भी चाहते हैं और विकास भी चाहते हैं। सड़क हुआ, आपका हॉस्पिटलाइज, जितना ये स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं, ये सब होनी चाहिए। ये तो हमारा मेन मुद्दा है।
पहले विकास चाहता है और मंदिर तो छोड़ेगा थोड़ा, मंदिर तो बनाएगा नहीं। वो सब मुद्दे पुराने हो चुके हैं, अब नई पीढ़ी की नई सोच है। As we leave Ayodhya for Banaras, we stop at one of the printing press which print local newspapers, something that not just carries public opinion but also helps form public opinion. हैदराबाद में गहमा गहमी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन विकास तो हो ही नहीं रहा। कुछ भी चीज़ें हैं, जहाँ पे देखे गंदगी, जहाँ पे देखे मैलापन, हर जगह है यही सब चीज़ें। तो वोट किसको दिया जाए? सबसे बड़ी चीज़ है चुनाव में जो है विकास के मुद्दे प्रमुख हैं, और किसी भी वर्ग का होगा, चाहे जिस वर्ग का होगा, सांप्रदायिक भाव को छोड़ करके विकास के मुद्दे पे सारे वर्ग के लोग इस समय निगाह रखे हुए हैं। आजकल तो खबरें सब एक दूसरे के भड़काने की खबर है, और वोट तो इसी आदमी को दिया जाए जो काम आदमी दूसरे को करे। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बोल वाला है उनका सीट मतलब कंफर्म है, लेकिन वो आराम से। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लगते हैं कि अडवाणी जैसे लगते हैं? हाँ, उनसे लगभग दोनों से आगे ही लगते हैं। ये काशी नगरी है, ये मैजिक सिटी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिन होता है कभी करोड़ों आदमी दिखते हैं, कभी एक आदमी भी नहीं दिखता है। लौह पुरुष तो मोदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास पुरुष इसलिए है क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। आज मोदी खुद ही एक ब्रांड इमेज है और उनके आगे सारे लोग फीके हैं। बनारस की जनता पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रही है, वह एमपी का चुनाव नहीं करेगी, प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रही है। यदि हमारे देश में वाल्मीकि जैसा चोर भी अगर महर्षि बन सकता है, तो मोदी पहले अच्छा थे, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बदल रखा है, तो जनता को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। 49 दिन किसी के मूल्यांकन के लिए बहुत कम समय है। जो अरविंद केजरीवाल का पुराना इतिहास रहा है परिवर्तन के दौरान, आरटीआई का इतिहास, हम उन्हें अभी भी एक मौका और देने में विश्वास रखते हैं। If you want a glimpse into the soul of Varanasi, all you need to do is spend some time on a boat with a boatman from Banaras. इस युग में रावण राज किसका आएगा कोई नहीं जानता है, बाकी इस कलयुग का राम तो मोदी जी हैं। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक शब्द जो पूरा जनता पूरा वर्ल्ड जानती है, वो जो बोलते रहे वो निखार आता रहा, वो आदमी को चुभ जाता दिल तक। उनके अगर वो आज रहते हैं तो मेरी देश ऐसे डेवलप नहीं होती पानी की तरह, जैसे पानी भरा ना बहता नहीं, तो पानी अस्थायी जगह रहता है। ये मेरी अंदर की फीलिंग है कि मोदी जी ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं जो वो बनारस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो इस समय महाभारत चल रहा है चुनाव का, जो सत्य है वो सत्य ही है। The truth can be absolute, the truth can be relative, and in times of election, the truth can also be engineered. The BJP in Varanasi would have us believe that it is about to deliver to the country its next Prime Minister. But what does Varanasi believe? It's become the hotbed of politics this particular election, but it's seen many political seasons in the past. This historic city, as we went about speaking to people, most people here believe that Varanasi has been this holy cow that most politicians have milked, but very few have fed. But then there are others like Shiva Raitya who believes that it would be Modi this time around who will be the deliverance to Varanasi. We leave Shiva's boat to make our way to the Banaras Hindu University. This political season, this political hotbed in a state of unrest.
At the Political Science Department, Professor Pathak invites us to join one of his lectures. हम मोदी को क्यों जिताना चाहते हैं, इसके पीछे मेरा एक ये रीज़न है कि मैं जब भी उनकी वक्तव्य को सुनती हूँ तो उससे ये फील होता है कि मतलब वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं झलकता है, उसमें एक प्रशासक के गुण भी दिखाई देते हैं, उनके अंदर एक टेक्निक जो दिखाई देता है जिससे ये लगता है कि हाँ वो कुछ कर भी सकते हैं। किस तरह की डेवलपमेंट मॉडल, हमें वैसा डेवलपमेंट मॉडल नहीं चाहिए जो इनइक्वालिटी को और बढ़ाए, हमें एक इक्वालिटी चाहिए सोशल इकोनॉमिक। तो मोदी किस डेवलपमेंट मॉडल 272 प्लस का मॉडल दे रहे हैं, बट दिस मॉडल इज डेफिनेटली फॉर द कैपिटलिस्ट क्लास और वो कॉर्पोरेटिज्म के फेवर में है। हमें इनके इस फ्रंट पे मुझे उनसे जवाब चाहिए। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो मोदी इज द बेस्ट पर्सन। जिस तरह से जो भ्रम बनाया गया है कि भाजपा मोदी सांप्रदायिक है, मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात चारों स्टेट में भाजपा की सरकार है और पिछले 10-12 सालों से कोई दंगे नहीं हुए हैं। और जहां दंगों का प्रश्न है तो कांग्रेस के शासन में, यहाँ हमारे एसपी के शासन में हर स्थान पर कहीं न कहीं दंगे हुए हैं। केवल एक ही दंगे को लेकर उन पर यह भ्रम फैलाया गया और उस भ्रम को मिटाने की आवश्यकता, और मोदी यह निश्चित रूप से कर पाएंगे और हम देख भी रहे हैं उनकी छवि विकास रूप में उभर रही है। हम तो पहले एक परिवर्तन चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन, और दूसरा सतत विकास, इसलिए हम उनको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर है, ये जाति नहीं जानते, ये धर्म नहीं जानते, ये संप्रदाय नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ विकास जानते हैं और अपना कैरियर जानते हैं। एक लीडर के जो जो गुण होने चाहिए उनमें है, कितनी भी शिकायत सुनने के बावजूद भी वो उसको सहन शक्ति कर सकते हैं और अपने आप को दिखा पाते हैं, और हमको लगता है उनके आने से जरूर देश में बहुत तरक्की हो सकती है। अगर वो गुजरात को विकास का पैमाना मानते हुए हम देखते हैं कि पूरे देश पर लागू कर दिया जाए तो गुजरात पूरा देश नहीं है। गुजरात में एकता हो सकती है लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जिसको हम गुजरात के पैमाने से नहीं कर सकते हैं। मोदी ऐसे नेता हैं जो सभी को लेकर साथ में चल रहे हैं, वो तो हम उनको स्वाभाविक है कि विकास पुरुष ही मानेंगे। तो हम हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के 50 साल आगे और आने वाले 10 साल या फिर जब भी मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं चल सकते। हमको पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन नहीं, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन लेके चलना पड़ेगा। While most people we met on the streets of Varanasi, they seem to be dyed in wool in the rhetoric of Is Baar Modi Sarkar. But the minute you step inside the gates of the Banaras Hindu University, something changes. Most of these people are first-time voters in this country, but most of these people have given the most informed opinion of the biggest political carnival that this country has seen in recent times. It is a beauty that most people, most of these students that we've spoken to, the kind of reactions that we've got absolutely nowhere else in Uttar Pradesh. The most informed, the most discerning, and the most intelligent. There is a reason why Varanasi is called the cultural capital of India. In any lane you go, you walk along the ghats, you walk in the bylanes of this old city, and you're bound to meet an artist. We have a few people with us whose generations have been connected with the arts, serving the people of Varanasi and India. And all of them today have a political opinion. Their forefathers have seen Varanasi through many of its phases, through many of its colors. And this is, of course, another phase that Varanasi is going through in terms of politics. We're going to try and talk to them, try to gauge in their reaction on how are they viewing this political spectacle. कैसे देखते हैं? लौह पुरुष देखते हैं, विकास पुरुष देखते हैं नरेंद्र मोदी को? नहीं, एक विश्वस्त पुरुष जिसने जो कहा वो करके दिखाने की क्षमता जिसके अंदर है। जैसे लोग ईश्वर पे करते हैं, मैं तो कर रहा हूँ, मैं मोदी चालीसा गाया हूँ। मैंने उनके अंदर एक अलग से छवि देखा है, ये मेरी अंतर भावना है। मुझ में तो हनुमान जी का रूप दिखता है उनके अंदर। मोदी अपना निर्णय स्वयं लेते हैं और पूरा विश्वास है कि भारत में मोदी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, भाजपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है। नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि जो गुजरात पहले का विकास है उस गुजरात को देखकर लोग विकास पुरुष माने तो हम नहीं मान सकते हैं। We're in a small weavers community in Varanasi where the majority population is the minority. Until now, they haven't bought the development plank that Narendra Modi is hard selling. For them, Narendra Modi has been and will be the figure for divisive politics. हम लोग तो कोशिश करेंगे कांग्रेस को जिताने का, क्योंकि कांग्रेस जो है कारोबार बढ़िया दिखता है और कोई भी सरकार आएगा नहीं चला पाएगा।
जो मोदी बार बार बोले जा रहा है कि विकास लेके आएगा, विकास लेके आएगा। नहीं, वो तो सिर्फ बोल रहे, कांग्रेस जैसी पार्टी कोई है ही नहीं है। मोदी क्यों नहीं पसंद है आपको? इसलिए कि सही आदमी नहीं, वो भेदभाव ज्यादा रखते हैं, मतलब जातिवाद देखते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जब बनारस आएंगे वो मुसलमानों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो आए, मिले तो ना, कभी आए हैं। We are back at the Ghats to meet Amitabh Bhattacharya, a seasoned journalist and a citizen of Varanasi. Why are people so fascinated in this city with Narendra Modi? It is sort of innocent addiction. It is an innocent addiction because for long time we have got no savior. For long time we have not seen a genuine political leader doing something for this city. And when Modi is so vocal about certain amount of changes, people obviously looking after if it is possible. So it is almost like reading the last page of a detective novel. I am fearful about the heritage of this city, lineage of this city, because in the name of politics we are the last and least to sacrifice the cultural glory of Banaras. So what my request and humble suggestion to the political parties, behave yourself. Don't forget, this city is much elderly than history. Amitabh introduces us to Dubey Ji, the founder of the famous Ganga Aarti at the Dashashwamedh Ghats. They have been friends, so were their grandfathers. लगता है जो नरेंद्र मोदी विकास का प्रतीक बनेंगे वो कुछ कर पाएंगे? भाई उनके माध्यम से हमने टीवी देखा कि वो गुजरात में बहुत कुछ नदिया के लिए किए हैं। तो हो सकता है हमारी सोच हो कि अगर वो पीएम बने, अगर जीत के जाए तो गंगा के लिए भी वो करें। Whatever goes down in newsprint, whatever the likes of us say on national television, nothing quite matters. There's only one absolute truth, and that would be the voter. If in reality Narendra Modi has been able to make the transition from a man of identity politics to the man of development, it doesn't quite matter. If the voter believes he has, then he has.